Students, we've seen how do we calculate mutation testing score or the confidence, and we've seen mutation testing adequacy. Now we do the same for fault seeding. Fault seeding is used to estimate number of errors remaining in the program. Here we are going to seed artificially generated but x number of faults. यहाँ पे जो फर्क आपको नजर आएगा, in mutation testing we have mutation operation, concept of mutation operators. Each mutation operator is one change, and if you have 10 faults that you are going to seed, this means you have 11 resulting programs. Why 11? One is the original and 10 are the mutants. Okay, so in fault seeding you have only two, one without any seeded faults, the other with 10 seeded faults, because हमने पहले 10 की example ली. Okay, before testing we seed the program with number of typical errors, keeping careful track of changes made. अब ये कौन से typical errors हैं? ये वही हमारे पास हैं जो कि हमने पिछले उसमें जैसे म्यूटेशन टेस्टिंग में हमने कंसिडर किए थे. These are the changes in the control loop, these are the changes in the predicates, these are changes in the computations, और इन सब को हम लेके हम ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि कितने हमारे, अब अगेन हमारे पास जिस तरह म्यूटेशन टेस्टिंग में प्री डिटर्मिन्ड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस थे, हमारे पास प्री एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ टेस्ट केसेस थे. मेरे पास एक टेस्ट सूट अवेलेबल था and I wanted to find out confidence, but by adding one fault at a time, rerunning whole number of test cases. यहाँ पे whole number of test cases तो rerun होंगे, लेकिन number of faults सारे के सारे एक वक्त में डालेंगे. यहाँ हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट है आफ्टर period of testing we want to compare number of seeded and non-seeded faults detected. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी. This means कि our interest is कि I want to seed fault, but by seeding fault my interest is two outputs, not one. पहली में म्यूटेशन में मेरी था कि मैंने फॉल्ट जो सीड किया क्या वो बाहर आ गया, क्या वो मुझे मिल गया. अब यहाँ और है, यहाँ है कि सीडेड, अगर मैं सीडिंग करूँ और मुझे कोई ऐसा एरिया मिले जहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेस देन 70% या लेस देन 60% या लेस देन वट एवर एक्स नंबर या लेस देन 100% मेरे पास है, अब मेरे पास क्या करना पड़ेगा? अब मुझे ये होगा कि जब मैं टेस्ट केसेस ऐड करूंगा तो मेरी एंटिसिपेशन ये है कि कुछ फॉल्ट जो कि मैंने नहीं डिस्कवर किए थे वो भी मिलेंगे, मेरे सीडेड फॉल्ट भी मिलेंगे और मेरे अनसीडेड फॉल्ट भी मुझे निकलेंगे. ओके, लेट S be the number of faults seeded, N be the number of seeded faults detected, and capital N is the number of non-seeded faults detected. The number of remaining non-seeded faults in a program is this. Acha, this technique was given by Mills in 1972, quite an old technique, but it has a lot of relevance today as well. इसको कैलकुलेशन को हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे कैलकुलेट होता है. अच्छा, C is equal to 1 if N is greater than N, or C is equal to S over S minus N plus 1 if N is less than or equal to N, meaning S number of seeded faults and total of number of non-seeded indigenous faults. अब ये है मेरे लिए N is interesting कि वो कौन से faults थे जो कि पहले डिस्कवर्ड नहीं थे, मैंने सीड नहीं किए लेकिन निकल आए. सो दीज आर दोज. अच्छा, N को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है एस एन ओवर एस, वेयर कैपिटल S is already given number of seeded faults, small n is actual number of non-seeded faults detected, and S is the number of seeded faults detected during testing. अब देखिए, फॉल्ट सीडिंग प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, प्रोवाइडिंग अस विद अ मेजर ऑफ सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट केसेस और इफेक्टिवनेस ऑफ टेस्ट केसेस. अब मेरे पास इंटरेस्टिंग चीज क्या आई कि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. अब आप स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में क्या करते थे, आप कवरेज, मीट्रिक ऑफ कवरेज निकालते थे 100%, 98%, 93%. हमने एक और हल निकाल लिया. हमने क्या किया, कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना शुरू कर दिया. अगर आपके मैं लेट्स से x नंबर ऑफ फॉल्ट्स डालूं इसमें आपके प्रोग्राम में,
इंड्यूस करूं तो मुझे ये देखना है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग टेस्ट, लेट्स से टेस्ट सूट है, एक्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, क्या ये उन सब फॉल्ट्स को डिस्कवर कर लेंगे? अगर डिस्कवर कर लेंगे तो वेल डन, सी इज इक्वल टू 1 और सी इज 100%। अगर नहीं है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि सी की क्या वैल्यू निकल रही। और अगर इस प्रोसेस में कहीं नॉन सीडेड फॉल्ट्स भी निकल आए तो फिर मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि अब ये वो होगी स्टोरी के जहां पे मुझे पता लगेगा कि एक्चुअली जो मैंने टेस्टिंग की थी उसकी अपना कॉन्फिडेंस क्या है। और ये एक अल्टरनेटिव टू स्ट्रक्चरल टेस्टिंग निकल आया है। वन और मोर फॉल्ट्स आर डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू कोड बेस विदाउट इनफॉर्मिंग टेस्टर्स। अब ये देखिए कि मैंने इंड्यूस किया, मैंने रीरन करवाया बाय टेस्टर्स, लेकिन ये वन और मोर मींस वन भी हो सकता है, लेकिन टिपिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स नंबर ऑफ फॉल्ट्स विच आर ग्रेटर देन वन, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वन। Discovery of seeded faults during testing can be used to calibrate effectiveness of the test process. अब seeded faults मेरे पास निकले, मैं कैलिब्रेशन कैसे करूंगा? अगर 10 सीड किए थे और 7 निकले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए टेस्ट प्रोसेस की मजीद टेस्ट केसेस ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, लेट एस बी द टोटल नंबर ऑफ सीडेड फॉल्ट, एस टी इज द नंबर ऑफ सीडेड फॉल्ट दैट हैव बीन डिस्कवर्ड एट टाइम टी। S, let S be 10 और S at time T is 7. तो जनाब ST over S is the seed discovery effectiveness of testing at time T या to time T। अब आप इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर 1000 टेस्ट केस रन करने थे तो मैं साथ साथ कैलकुलेट करता रहूंगा सीड डिस्कवरी। लेट्स से कि अगर जो मेरे पहले जो मैंने 400 टेस्ट केसेस रन किए उसमें मेरी सीड डिस्कवरी 100% हो गई एट टाइम टी, इफ इट इज एस ऑफ टी इज लेट्स से 40 मैंने सीड किए थे और 40 ही निकल आए, तो दिस इज 100%। दिस मीन्स कि मुझे इससे ज़्यादा आगे टेस्टिंग करने की या इस टेस्ट रन को या टेस्ट साइकिल को मजीद एग्जीक्यूट करने की शायद ज़रूरत नहीं रही। इफ सीडेड फॉल्ट्स आर assumed and are to be representative of the actual faults, then seed discovery effectiveness can be assumed to be representative of overall testing effectiveness। अगर मेरी सीडिंग, फॉल्ट सीडिंग ओवरऑल एक्चुअल फॉल्ट्स की रिप्रेजेंटेटिव है तो मेरी जो टेस्टिंग है या जो मेरी फॉल्ट फाइंडिंग है वो भी तो इफेक्टिव उसकी रिप्रेजेंटेटिव है ना, मेरी ओवरऑल टेस्टिंग की और टेस्टिंग की इफेक्टिवनेस की रिप्रेजेंटेटिव है। दिस मीन्स कि अगर सारे फॉल्ट निकल आए तो दिस मीन्स कि मेरी ओवरऑल टेस्टिंग इफेक्टिव है। क्वेश्चन, सीड 100 फॉल्ट्स इनटू अ प्रोजेक्ट एट टाइम 0, testing continues to time 30, at which point 73 of the seeded faults have been detected। अच्छा जनाब, अगर if 219 actual faults were discovered, what are the expected number of total faults prior to seeding? ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसमें आप देखिए कि सीड तो मैंने की है 100, टेस्टिंग कंटिन्यूज टू टाइम लेट्स से 30 मिनट्स या 30 आवर्स, एट विच 73 तो सीडेड फॉल्ट निकले, लेकिन एक्चुअल फॉल्ट जो डिस्कवर्ड है वो 219, तो ये बाकी कहां से आए? इसको भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। दिस मीन्स के 219 फॉल्ट्स में से 73 सीडेड थे, बाकी अनसीडेड थे। सो हाउ मेनी लेटेंट फॉल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द सॉफ्टवेयर एट टाइम 30? अच्छा, दूसरा इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, लेटेंट फॉल्ट, लेटेंट। अच्छा, दीज आर दोज फॉल्ट्स जो कि किस में से निकलेंगे? हमें ये चेक करना पड़ेगा। 100 सीड किए थे, 73 निकल आए हैं, या 73 आर फाउंड। द डिस्कवर्ड ओरिजिनल फॉल्ट्स आर 3 times the number of discovered seeded faults, so 300 original faults are expected. Latent faults are 300 minus 219, 219 निकल आए। दिस मीन्स के 100 minus 73 सीडेड फॉल्ट्स, सो दैट इज 81 plus 27, 108 फॉल्ट्स अभी लेटेंट हैं। ठीक है जनाब। सो दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल जहां हमने कैलकुलेट करके देखा कि आप अगर फॉल्ट सीडिंग कर रहे हैं और आपको डेटा मिल रहा है तो देन यू कैन बिल्ड एन एक्सपेक्टेशन मैथमेटिकली व्हाट सेज कि जनाब अब तकरीबन इतने फॉल्ट्स और आपको मिलने की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। जब हम टेस्ट मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे तो इसको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने देखा फॉल्ट टाइप्स को,
अच्छा, डोमेन फॉल्ट्स, कंप्यूटेशनल फॉल्ट्स, ये एक मैंने एक पेपर से एक आपको मैं निकाल के, जो कि मेरा अपना पेपर है, जिसमें से आपने क्या किया जनाब, कंप्यूटेशनल फॉल्ट्स डाले, इनिशियलाइजेशन फॉल्ट्स डाले, लॉजिक और कंट्रोल फॉल्ट्स इंड्यूस किए, इंटरफेस में फॉल्ट इंट्रोड्यूस किए और डेटा के फॉल्ट्स डाले। हमने किया क्या, हमने फॉल्ट सीडिंग करते हुए, दिस इज अ गुड एग्जांपल, जहां पे आप देख सकते हैं कि आपको, जैसे आप जब फॉल्ट सीड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए कि आप कितने परसेंट फॉल्ट्स कैसे कैसे इंड्यूस करेंगे, ताकि आप जब ये जो मैंने पिछली स्लाइड पे आपको कैलकुलेशन दिखाई है, आप इसको कैलकुलेट करें, आप एक्सपेक्ट करें कि आप कितने फॉल्ट्स इससे निकल सकेंगे। आपका टेस्ट डेटा जो है वो एक काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव आपको आंसर दे। Another thing which is required here, which is kind of a comparison between fault seeding and mutation testing. In fault seeding, we do not have mutants, whereas in mutation testing, we develop mutants. अच्छा जनाब, fault seeding में we do the testing within itself, that is the source code is tested. ये एक error prone या error induced kind of source code होगा, whereas in mutation testing we compare the result of testing on the original and one mutant, I mean mutant with one induced error version. Errors are introduced directly, whereas there are techniques जो कि आपको mutation testing में आप use करते हैं to induce what type of errors that you want to induce. Test cases detect the error are used for testing. Here test cases which kill mutants are used for testing. Okay, और kill का हम example पहले explain करके आ चुके हैं. Less efficient error testing technique, whereas mutation testing is really more efficient, however at the expense of dollars, at the expense of cost. Fault seeding is economical, whereas mutation testing is kind of expensive. फॉल्ट सीडिंग, बिगर प्रोग्राम्स पे फॉल्ट सीडिंग बेटर टेक्निक है, क्योंकि आपके पास अगर बिगर प्रोग्राम्स होंगे तो उसके अंदर आपको जैसे ही आप म्यूटेशन करेंगे तो हर म्यूटेशन के लिए आपको एक सिंगल वर्जन संभालना पड़ेगा या आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा, विच इज़ काइंड ऑफ नॉट सो ईजी. म्यूटेशन टेस्टिंग फॉर स्मॉलर प्रोग्राम्स, फॉर स्मॉलर एल्गोज, इट इज़ अ गुड टेस्टिंग टेक्निक, बिकॉज उसमें आपके पास बाकी जो एलाइड जो कोड साइज है वो इतना बड़ा शायद नहीं होता. ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया जनाब. हमने देख लिया कि जनाब इफ़ेक्टिवनेस को देखा जाए, जनाब टाइम कंज्यूमिंग, टाइम फैक्टर को, जो कॉस्ट साइड है और द इकोनॉमिकल और द एक्सपेंस साइड है उसको देखा हमने, और विच वन इज़ बेटर मेथड फॉर विच साइज ऑफ प्रोग्राम्स. म्यूटेशन टेस्टिंग बेस्ट सूटेबल फॉर स्मॉलर सिस्टम्स, critical systems, fault localization is easy. On the other hand, fault seeding इकोनॉमिकल, येट फॉल्ट लोकलाइजेशन इज डिफिकल्ट. क्यों? देखिए, मेरे पास एक चेंज थी, फॉल्ट लोकलाइजेशन नो प्रॉब्लम. मेरे पास प्लेंटी ऑफ चेंजेस थी, कौन से टेस्ट केस ने किन किन को किल कर दिया है या किन किन को हिट कर लिया है, इट इज़ डिफिकल्ट. और फिर कौन से फॉल्ट कहाँ कहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिस्टम को क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट.